Hello students, dear students, in last video we have studied about the types of soil in which we have done the three type of soils are there. They are loamy soil, sandy soil and clay soil. According to their in the you can say according to the property of their particles, है ना, size of particle and texture of particles and absorption capacity. You can say we already done the properties of that type of soil. Dear friends, you have seen that the sandy soil which have the largest bigger particle in it, which move apart to each other and they have some space between them. Because of that they have the air gaps inside it, and because of that air gaps they can absorb the more amount of water inside it. Okay, so that type of soil are known as the sandy soil. After that we have seen the loamy soil. The loamy soil, a soil in which the particle size is bigger and smaller. Both type of particle are equally distributed in that type of soil. So ultimately you can say that type of soil is suitable for the growth of the plant, because it does not drain easily, or you can say dry easily, and it does not hold more and maximum amount of water on its surface. That means it is a equality or balancing of absorbing capacity in that type of soil. Okay, clay soil, the potters use that type of soil which have the finest particle inside it and which have not so much space between the particles, so that that are known as they are used to make the pottery, because they are tightly packed and they have the binding property also. What it, so that the पोटर्स यूज़ दैट टाइप ऑफ सोइल टू मेकिंग द पोट्री. वो मटके वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए उसको यूज़ में लिया जाता है. एंड दिस हैव द water holding capacity also because of no space between the particle, or you can say negligible space between the particles. It can hold the water for a long period of time. Because of that some type of you can say crops like the cotton, paddy, lentils etc can grow and that type of soil. Okay, so we have done these all property about the types of soil. Now I am going to tell you about the properties of soil, some property which are left there. तो इन सोयल्स की डिफरेंट टाइप की जो सोयल है वो तो टाइप्स हो गए. इसमें टाइप्स में भी जो प्रॉपर्टी है हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे वन बाय वन करके. मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल में द परकोलेशन रेट. ओके, द परकोलेशन रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सोयल है, किसी भी टाइप की जो सोयल है, जैसे अपन ने लोमी, सैंडी और क्लेई सोयल अपन ने पढ़ा है, वो डिफरेंट टाइप की जो सोयल होती हैं उनके अंदर, सोयल के अंदर वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितने टाइम में वो सोयल अब्जॉर्ब कर पाती है, मतलब कौन सी सोयल में इस टाइप की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो उसकी कहलाती है परकोलेशन रेट. इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तीन जगह से अपन क्या करें, दो तीन जगह पे अपन एक लेते हैं जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती है, प्लास्टिक बोतल, उसमें उसकी सरकमफरेंस इक्वल रहनी चाहिए. तीन चार स्टूडेंट इस तरह से कर सकते हैं. वो अलग अलग जगहों पे क्या करें, वो बोतल को नीचे से कट कर दें, दोनों साइड से ओपन रहना चाहिए पर्टिकुलर प्लेस में, और कितनी दूरी तक उसको मेज़र कर लें कि आप कितना 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच, कितनी दूरी तक. मान लो आपने ये लिया, ये बोतल ले ली, सबकी बोतल का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दोनों साइड से कैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए. ये क्या है, फील्ड है, ये एक अनदर फील्ड है, ये हमारे पास एक तीसरा फील्ड हो गया. एक बोतल हमने इसमें दी, ठीक है, एक बोतल हमने इसमें लग फिट कर दी, और उनका ये जो साइज़ है, विड्थ जो है इसकी, ये क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए. सेम साइज़ की बोतल होनी चाहिए, सेम उनकी लंबाई चौड़ाई सारी होनी चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बोटल्स अपन ने ले ली हैं. अब इन बोटल्स में हम क्या करेंगे, ये हम देख लेते हैं. ये एक बोतल हो गई हमारे पास ए बी, और इस तरह से करके हम इसको, ये दो सी, तीन बोतल हम मान लो ले लेते हैं. ठीक है, इस पर हम
A B C स्टूडेंट्स हैं, यू आर डूइंग विद योर फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स के जो भी नेम होंगे उसके अकॉर्डिंग कर दूँ। अब यहाँ पे जो सोयल थी उस सोयल में इसका कितना पार्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 3 इंच, है ना, या आप ये बोलो कोई भी मेजरमेंट ले लो, इनका सबका कितना 3 इंच तक का जो एरिया है वो किसमें कर दो, उस सोयल के अंदर डिप कर दो। मतलब यहाँ तक की सोयल के अंदर तुमने क्या कर दिया, इसको नीचे तक डाल दिया है, उसमें दबा दिया है। ओके, तो ये यहाँ तक क्या है, सोयल के अंदर है, इसका इतना पार्ट, बोतल का इतना पार्ट सोयल के अंदर हमने रख दिया है। अब हम एक अनदर कंटेनर लेंगे, एक दूसरी बोतल ली हमने, है ना, कोई भी कंटेनर लिया, ये मान लिया अपन ने कोई भी बोतल ले ली, ठीक है, और ये बोतल का जो मेजरमेंट है मान लिया अपन ने कितना है, ये 200 ml, कितना भी ले सकते हैं अपन, इक्वल होना चाहिए सबके लिए। 200 ml की बोतल, एक बोतल करके हम इनमें अलग अलग सैंपल में अलग अलग टाइप की सोयल में क्या करते जाएंगे, पहले ए डालेगा, फिर बी और फिर सी, धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, इसको डालते रहेंगे। अब जो सैंपल ऑफ सोयल वो कितनी देर में उस पूरे पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते गए ट्रांसपेरेंटली ये दिखता जाएगा कि जो भी ड्रॉप डाल रहे हो वो सारी क्या होती जा रही है, नीचे सिपसप होती जा रही है, वो उसको क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो अब्जॉर्ब हो गया उसमें सोयल के अंदर। अब अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी है कि वो कितनी देर में, यानी कि 200 ml वाटर है, वो ए सैंपल कितनी देर में, या ए स्टूडेंट जो है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कितनी देर में उसकी मिट्टी कर पाती है अब्जॉर्ब, बी सैंपल कितनी देर में करेगा, सी सैंपल कितनी देर में करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपने पास जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है वो कितना है, वो फिक्स है, तो अपन सबकी परकोलेशन रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। परकोलेशन रेट क्या होगी, वाटर अब्जॉर्बिंग, एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि कैपेसिटी हो गई है इनकी, कि कौन सी सोयल कितना वाटर कितनी देर में क्या कर पाती है, सिप कर पाती है। नाउ इफ यू हैव टेकन 200 ml, कितना लिया है अपन ने वाटर बोतल में, 200 ml लिया है, ठीक है। अब 200 ml को सैंपल ए अब्जॉर्ब करने में टाइम लेता है, मान लिया कितना, 10 मिनट्स, और इसने लिया 20 मिनट और इसने लिया 30 मिनट। ओके, गॉट इट, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप की सोयल ली है, इसमें अपना सैंडी होगा, लोमी होगा, जो है क्लेई सोयल होगा वो होगा। तो अपन ने क्या किया, 10 मिनट इसने ली है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी परकोलेशन रेट क्या आ जाएगी, 20 ml पर मिनट, यानी कि ये जो सोयल सैंपल है ए, ये क्या करता है, 20 ml वाटर को 1 मिनट में अब्जॉर्ब कर लेता है। गॉट इट। आफ्टर दैट इफ यू हैव टेकन द अनदर सैंपल, दूसरे सैंपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंपल बी की, ठीक है, तो सैंपल बी में वी हैव टेकन सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 200 ml वाटर, and what will be the time there, it take the 20 minutes to absorb the whole water, so the percolation rate will be 2 times 20, 10 milliliter per minute, means sample B absorb 10 ml water in a 1 minute. Got it? Understood? Another sample C, same amount of water, time taken 30 minutes, सॉल्व इट, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, और ये हो गया हमारा 6.66, ओके, तो ये 6.66 एंड सो ऑन ml वाटर पर मिनट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द परकोलेशन रेट ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ सोइल। अलग अलग सैंपल में हम क्या निकाल पाते हैं, इनका डिफरेंस निकाल पाते हैं। अब जो सोइल ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर रही है, मीन्स उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ क्या होगा, वो बड़ा होगा, और पार्टिकल का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो क्या, उसमें दे हैव द मोर एयर गैप्स, they have the more space between them, because of the space between them they can absorb more water in a small period of time. So you can say that sample may be, ये sample हो सकता है किसका, सैंडी सोयल का,
अनदर टेक द बिटवीन टाइम देन द, उसमें ज़्यादा लग रहा है तो अपन ये कह सकते हैं इट मे बी द लोमी सोयल, ये हो सकती है, ये नहीं पक्का नहीं बोल रहे अपन, हो सकती है, क्योंकि ये कंपैरिजन करें तब तो हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अपन ऐसा नहीं बोल सकते. नाउ यू हैव द सैंपल सी, इट टेक्स सो मच टाइम टू absorb the water because of the that's easily understood that the particle size may be so much small that they have not so much space between the particles, so it takes so much time to absorb the water. So its percolation rate of absorbing the water is so less in the third sample. So it may be the clayey soil, may be, I'm not sure saying that it's sure it's a clay soil, but at the with the comparison with others you can consider as a clay soil here. Okay, so these are the this is the property of soil, and you can say this is the percolation formula of getting the percolation rate of the different sample of soil. Got it? Let's see the another property, moisture in the soil. Students, you all know about the word moisture, which you have studied earlier also. Moisture means the amount of water present in any sample. किसी भी सैंपल में अगर क्या हो, अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है, मॉइस्चर कहलाती है. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं. तो मॉइस्चर का ऐसे क्या समझ में आता है, मॉइस्चर मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोयल. गॉट इट? लेट्स सी. अब अपन अगर इसकी बात करें, मॉइस्चर में भी अगर हम ये देखें कि किसी भी सोयल सैंपल में वाटर अब्जॉर्ब करने की जो परसेंटेज है वो कितनी हो सकती है. ठीक है, तो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं. वो एक्टिविटी क्या करके देखें अपन, लेट्स सी. उसमें हम देखते हैं, देखो अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो मान लिया हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है ना, एक बीकर है. बीकर में हमने क्या रख दिया, एक ये हमारे पास एक कीप है. ठीक है, ये कीप ले लिया अपन ने. गॉट इट? इसमें अपन ने लगा दिया एक फिल्टर पेपर. क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर. ओके, ये क्या है, फनल या कीप बोल सकते हैं हम इसको. ये फनल हो गया. ये हमारे पास क्या है, बीकर. Got it? Understood? Now take a dropper. अब हमने एक क्या ले लिया, एक ड्रॉपर ले लिया. ठीक है, ये हमारे पास एक ड्रॉपर है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं. और इस फिल्टर पेपर में अपन ने क्या डाल दिया, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, सोयल सैंपल. सोयल सैंपल यानी कि कोई भी मिट्टी का सैंपल अपन ने ले रखा है, वो हमने इसके ऊपर यहाँ पे डाल दिया है. अब हम क्या करते हैं, इस सोयल सैंपल को अपन मेजर वे कर लेते हैं कितना है. मान लो ये कितना है, 50 ग्राम है ना. ग्राम्स में लेंगे, मेजर करेंगे उससे, ये 50 ग्राम हो गया. अब हम क्या करते हैं, हमने इसमें ड्रॉपर से इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर डालते जाएंगे. ठीक है, तो मान लिया इसका मेजरमेंट लेंगे अपन ने. एक ये क्या ले लिया, मेजरिंग फ्लास्क ले लिया. इसमें हमने वाटर डाला हुआ है. मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको देखना चाहें तो अपन मान सकते हैं कि हमने इसमें लिया 15 ml वाटर. गॉट इट? तो हमने 15 ml वाटर इसके अंदर ले लिया. अब ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम क्या करते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं. कुछ टाइम तक तो वी डिडंट गेट एनी ड्रॉप फ्रॉम द दैट फनल into the beaker में there is no amount of water droplets are collected there. कोई भी water droplets आके collect नहीं हो रही है. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें से डालते गए डाल दिया. और कितना डाल दिया, इसमें ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास, कितना बचता है, मान लिया 5 ml बचता है इसमें. ठीक है,
उसमें बचा 5 ml। और फिर इसमें जब डालते गए 10 ml मीन्स हम इसमें डाले 10 ml के बाद इसमें ड्रॉप आनी शुरू होती है। मीन्स 10 ml जहाँ पे एक ड्रॉप हम अपने को दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, या ड्रॉप मान लो गिर भी जाए, बाई मिस्टेक गिर भी जाती है, अपन ने उसमें डाल दिया, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से वो उसके अंदर डाल लेंगे ताकि अपने पास बचे हुए का मेजरमेंट आ जाए। तो जैसे ही ड्रॉप बनना स्टार्ट होती है उस पर हम स्टॉप कर देते हैं और वहाँ उसको मेजर करके चलते हैं। तो इनिशियली हमने क्या लिया, कितना लिया, कितने अमाउंट ऑफ वाटर लिया, 15 ml लिया था अपन ने। कितना लिया था, 15 ml। ओके, आफ्टर यूजिंग इसको अपन डिनोट कर देंगे कैपिटल यू से, ठीक है। अब्जॉर्वेशन के बाद है ना, रिमेनिंग फाइनल जो बचता है, फाइनल रिमेनिंग वाटर कितना बचता है अपने पास, 5 ml। इसको अपन करेंगे V से, मतलब टोटल अब्जॉर्ब वाटर, बाकी कहाँ चला गया, सोइल ने अब्जॉर्ब किया, तो कितना अब्जॉर्ब हो गया इसमें, U माइनस V मीन्स 15 माइनस 5, 10 ml। हाउ मच इट अब्जॉर्ब, 10 ml। इसने कितना अब्जॉर्ब किया, सोइल ने 10 ml किया। अब इसकी जो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ये है U माइनस वी अपॉन वे ऑफ सोयल मल्टीप्लाइड बाई 100, और उससे क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द सोयल। इससे अपन क्या निकाल लेंगे, मैं आई रफ है, अब तुम तो बोलोगे नहीं तो मुझे तो रफ करना ही है ना, तो ये मैंने रफ कर दिया। ओके, तो हम क्या लेते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय सोयल। जो भी सोयल है उसने कितना वाटर अब्जॉर्ब किया, या परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हम कैसे निकालेंगे। सो वी गेट द फॉर्मूला U माइनस V अपॉन वे ऑफ सोयल, है ना, या सोयल सैंपल जितना भी अपन ने लिया है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके लिए अपन ने वैसे तो निकाल भी लिया V माइनस U, अपन ने कितना निकाला, या इस फॉर्मूला में भी अपन पुट कर सकते हैं, V 15 ml माइनस आफ्टर absorbing which amount we left over there, that is the 5 ml water we have in the that measuring beaker cylinder, and the way of soil, that is the 50 now multiplied by 100. Okay, so 10 upon 50 into 100, so 50 to the 100, 10 to the 20%, means what is the percentage of water absorbing, that is the 20% of that given soil sample। अगर हमारे पास एक soil sample है तो इसकी जो absorbing capacity है ये कितनी हो जाएगी, ये 20% हो जाएगी। तो ये निकल जाती है हमारे पास परसेंटेज। तो दो फॉर्मूला हो गए हमारे पास, एक तो परसेंटेज निकालने का, और एक हमने इससे पहले क्या दिया था, मॉइस्चर जो भी है परकोलेशन रेट है सोयल की, वो कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या किया था अपन ने, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, टाइम कितना टाइम उसको अब्जॉर्ब होने में लगा, वो क्या निकल गई थी हमारे पास, परकोलेशन रेट। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट these two method. After that which is remaining in this chapter, that the different type of soil. Students, we have studied about the different type of soil, which type of soil is useful for the which type of crops, and which you have seen that the soil sample which we have collected, if we talk about the clay and loamy soil, are both suitable for the growing cereals like वीट एंड ग्राम। वीट और ग्राम्स को उगाने के लिए कौन सी सोयल है, क्लेई और लोमी दोनों काम में लेते हैं। क्लेई सोयल मोस्टली कॉटन को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पैडी वगैरह के लिए भी उसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और ये जो अनदर अपन सोयल की बात करें, लोमी सोयल है, वो में अपनी जो सीरियल्स जो होती हैं, या अपन कह सकते हैं कुछ पल्सेस भी होते हैं, वो इस टाइप की सोयल में हो जाते हैं, बिकॉज it contain both type of particle inside it is made by the clay soil and loamy soil. It is a mixture of clay and loamy soil. So you can understand by that
and you can tell about those type of soil and the crops which are grown in that type of soil. After that, the last topic which is given there, soil erosion. Students, you have studied about the soil erosion in lower classes also. Soil erosion means removal of land surface. Okay, removal of soil or land surface from a particular area by the action of wind or by the water and by the another reason. स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, कई बार बहुत तेज बारिश बाढ़ वगैरह आ जाती है, उसकी वजह से जो अपर लेयर है सोइल की वो कट कट के पानी के साथ या हवा के साथ उड़ के चली जाती है. दैट इज नोन एज द सोइल इरोजन विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द afforestation by planting more and more trees, and you can say you can prevent it by growing the more plants and the by preventing the deforestation. कटिंग जो प्लांट्स की है वो रोक दी जाए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोइल इरोजन को रोक सकते हैं. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच आर गिवन इन योर बुक. In next video tomorrow I will explain you the summary of this chapter, and after that you will be provided the question answer of this chapter. I hope you all understand. Watch the video completely to understand those formula which are given there, and do the notes correctly in your notebooks. Got it? Thank you.